ثانیہ کارساز کو 16 برس مکمل ہونے پر جعلی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہر طرف پیپلز پارٹی اور فلسطین کے پرچم لہراتے رہے۔ سانحہ کارساز 16 برس بعد بھی زخم تازہ، جمہوریت کے لیے قربانی دینے والے امر ہو گئے، دہشت گرد ہوئے ناکام، زندہ رہا جیالوں کا جمہوریت کا پیغام۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسہ عام کا انعقاد، چیئرمین بلاول بھٹو سمیت سینئر قیادت کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز اپنے پیاروں کو یاد کرنے امڑ آئے، مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے سبھی جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار، فلسطین سے بھی ہوا یکجہتی کا اظہار، شرکاء فلسطین کا پرچم بھی لہراتے رہے۔ جلسے سے پارٹی کی سینئر قیادت نے بھی خطاب کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید بی بی کے استقبال کے لیے آئے، وہ دہشت گرد جنہوں نے مظلوموں کا جینا حرام کیا، ان دہشت گردوں نے دھماکے کیے۔ شہید محترمہ ہوتی تو بھارت اور اسرائیل کو یہ ہمت نہ ہوتی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی لیڈر کو واپس اس ملک میں خوش آمدید کرنے کے لیے آئے، وہی دہشت گرد جو ابھی تک اس ملک میں، اس خطے میں مظلوموں کا جنہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ 18 اکتوبر کی رات گزرنے سے پہلے 2 دھماکے ہوتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم ہوتی ہیں آج، کہ نہ ہندوستان نہ ان اسرائیلی قابض فورسز کو یہ ہمت ہوتی کہ وہ مسلمانوں پہ ایسے ظلم ڈھائیں۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا، پیپلز پارٹی ان شہداء کو سرخ سلام پیش کرتی ہے جو غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے شہید ہوئے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے اوپر اسرائیلی صہیونیت نے ریاستی ظلم ڈھالے اور نہت فلسطین کے بیوی بچے اور خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا، ان کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی خواتین کارکنان نے بھی بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارا مقصد ہے بی بی کے ویژن پر چلنا۔ آج کا دن ہم اپنے شہیدوں کو کی یاد میں مناتے ہیں ہمیشہ، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اور انہی کی شہادت کے لہو کی آبیاری سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پوری فیملی کی جو قربانیاں ہیں، تو آج اس ملک میں جمہوریت کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ ہمارے جو کارساز کا سانحہ ہوا، اس میں جن جن شہیدوں کے حصے تھے، شاید ہی ہم اس میں نام لکھا سکیں کبھی، لیکن وہ ہمیں کچھ سکھا کے گئے ہیں۔ جلسے میں سانحہ کارساز کے شہداء کے لیے دعا کی گئی اور اس عزم کو دہرایا گیا کہ شہداء کا مشن جاری رہے گا۔ نگراں سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے بھر کے کالجز میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈپلومہ کورس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمل درآمد کے لیے پروفیسر محمد عقیل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محکمہ کالج تعلیم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محکمہ کالج تعلیم کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں پروفیسر آصف علی سولنگی، پروفیسر جلال بھائیو، پروفیسر نصر اللہ بھٹی اور سحر شامل ہیں۔ کمیٹی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈپلومہ کورس کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائے گی۔ ڈپلومہ کورس کے لیے سندھ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کی مدد حاصل کی جائے گی۔ اس حوالے سے الحاق کے لیے ایس ٹیوٹا نے بھی الگ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ہول سیلرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی ثمرات عوام تک پہنچانے کا نسخہ بتا دیا۔ ہول سیلرز نے منافع خوروں کو ریٹیلرز کے خلاف کارروائی ناگزیر قرار دے دی۔ چیئرمین ہول سیل گروسر عبدالرؤوف ابراہیم کہتے ہیں کہ انتظامیہ ریٹیلرز پر کریک ڈاؤن کرے تاکہ صارفین کو فائدہ پہنچے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤوف ابراہیم نے کہا، ہول سیل میں 136 والی چینی ریٹیل میں 185 کی فروخت ہو تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ 250 والا چاول ریٹیل میں 500 کا فروخت ہو رہا ہے۔ انتظامیہ ریٹیلرز پر کریک ڈاؤن کرے تاکہ صارفین تک فائدہ پہنچے۔ جب ایک چیز 136 کی ہے چینی اور وہ 185 کی بکتی ہے تو لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ؟ یا ایک چاول اگر 250 روپے کا ہو چکا ہے، آج کیوں 500 کا بک رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریٹیل پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اور جہاں چینی اور آٹے کے ریٹ یہ مقرر کرنے جا رہے ہیں کمشنر صاحب،
कर दें ना मुकर्रर, ताकि जान तो छूट जाए एक दफ़ा कि ये प्राइस है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, दिसंबर में क्रैशिंग शुरू हो जाएगी। 300 रुपए मन गन्ने को 425 रुपए कर दिया गया। क्रैकडाउन ना होता तो चीनी 250 रुपए तक जाती। दिसंबर में स्टार्ट होगी क्रशिंग, जिसके इन्होंने जो 300 रुपये मन गन्ना था उसको 425 रुपये कर दिया गया है। तो जब 425 रुपये कर दिया गया है, अभी जो स्टॉक है कैरी ओवर स्टॉक तकरीबन 10 लाख टन है, जिसके ऊपर बहुत ही बताया गया कि जी 250 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। जब हम ये क्रैक डाउन ना होता तो शायद हो भी जाती। होलसेलर्स का कहना है रिटेलर्स नाजायज मुनाफाखोरी करके आवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट बन रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पोर्ट्स पर एक्सेल लोड लिमिट का नफाज पर ट्रांसपोर्टर खुशी से निहाल। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल के सदर तनवीर अहमद भट्ट कहते हैं, कराची की बंदरगाहों पर एक्सेल लोड पर अमल दरामद शुरू होना बड़ा इकदाम है। बनसीयत मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल, वफाकी वज़ीर कम्युनिकेशन और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन IG मोटरवे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ओवरलोडिंग के ख़िलाफ़ कराची पोर्ट्स पे जो कानून था उसको अमल दरामद करवा दिया है। साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करूँगा IG साहब से और मिनिस्टर साहब से कि वो जो कांटे बंद हैं, नॉन ऑपरेशनल हैं, उनकी रिपेयरिंग करवा के उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। ये भी एक मेन सोर्स हैं ओवरलोडिंग के हवाले से। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ओवरलोडिंग के हवाले से सूबा पंजाब में सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने IT शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद अवाम बआसानी QR कोड के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में IT शिकायती सेल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि 1 साल के अरसे में गवर्नर हाउस के अमले ने दिन रात मेहनत की। अब तक शिकायती सेल में 10,000 शिकायतें वसूल हुई हैं, जिसमें से 4,500 का अजाला किया जा चुका है। 10,000 लोग ऐसे थे जिनके वो मसाइल थे जिन्हें हल करने की हमारे यहाँ से पूरी कोशिश की गई, और जो बिल्कुल रिज़ॉल्व हो गए वो तकरीबन 950 जो मुझे नंबर्स दिए गए हैं 10,000 में से वो काम थे 950 जो लोगों के हमने हल कर दिए। कामरान टिसोरी ने मजलूम फ़लस्तीनियों पर ढाए गए जुल्म पर भी बात की और कहा कि बहुत जल्द मिस्र जाएंगे। फ़लस्तीनी बच्चों की जो शहादतें हो रही हैं, हाल ही में हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने हमला किया, कैसा सितम ज़रीफ़ी है कि बाप अपने मासूम बच्चों को गोद में उनके लाशें उठाए फिर रहे हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया। आइंदा चंद दिनों में मैं और JDC ज़फ़र अब्बास शायद मिस्र या इजिप्ट का दौरा भी करें और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि किस तरह हम भी कुछ चीज़ें उन तक पहुँचा सकें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इतवार को तमाम सिविल सोसाइटी को ऐवान सदर रोड पर शमा जलाने और फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करने की दावत भी दी। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, कराची। अब आपको बताएं कि सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस की तादाद बढ़ने लगी। कराची में 16 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। कराची में डेंगू फैलने लगा। 24 घंटों में 16 नए केसेस सामने आए। जिला ईस्ट में 5, सेंट्रल 3, साउथ 1, वेस्ट 1, मलीर और किमाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां माह सूबे में डेंगू के केसेस की तादाद 255 हो गई। अक्टूबर में अब तक कराची में डेंगू के 166, हैदराबाद में 77 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध में 1646 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची में 1285 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। सूबे में डेंगू से रवां साल कोई हलाकत नहीं हुई। डेंगू की तरह सिंध में मलेरिया भी बेकाबू होने लगा। सिंध भर में मलेरिया के 3232 केसेस सामने आए। कराची में 17 अफराद मलेरिया में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। हैदराबाद में 1386 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना में 780 और मीरपुर खास में 739 केसेस सामने आए। सक्खर में 238, शहीद बेनजीर आबाद में 15,307 केसेस रिपोर्ट हुए।
हुए। रवां साल मलेरिया केसेस की तादाद 4,16,909 रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 2,09,73 और मीरपुर खास में 92,957 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना में 86,383 और सक्खर में 18,957 केसेस सामने आए। शहीद बेनजीराबाद में 15,419 और कराची में 2,757 केसेस रिपोर्ट हुए। मलेरिया में रवां साल सूबे में 2 अमवात रिपोर्ट हुई। इसराइली जारियत के शिकार गजा के नहत्ते अवाम से इजहार यकजहती के लिए नून लीग की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात बताएंगे सादत हुसैन अपनी रिपोर्ट में। फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए लीगी मतवाले भी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों से रैली के शुरका प्रेस क्लब पहुंचे, जहां नून लीग के रहनुमाओं ने खिताब किया। मुजाहिरीन से खिताब में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और अली अकबर गुजर ने इसराइल की हिमायत याफ्ता कंपनीज की अशिया का बाइकआउट किया। और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक फलस्तीनी भाइयों पर, बच्चों पर, औरतों पर जुल्म खत्म नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। हम एहतजाज किया है, अपने अंदर से तफरके को खत्म कर दो। ऐ मोमिनो, ऐ मेरे नेक बंदो, ऐ अच्छे लोगों, सिरात मुस्तकीम पे चलो। एहतजाजी मुजाहरे में फलस्तीन भाइयों और बहनों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन वाहिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। हाई कोर्ट में सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद न करने के मामले पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि अलग अलग सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली जवाब दें। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हुकूमत ने हर ज़िले में कमेटीज़ बनाई हैं। कमेटीज़ में माहिरीन नफ्सियात, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अभी तक प्रोटेक्शन अफसर तैनात ना हो सके, ना ही जजेस और पुलिस को इस एक्ट से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई, जिस पर अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए केस की मज़ीद समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की 1 लाख मुरब्बा गज ज़मीन की गैर कानूनी लीज जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी लीज देने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन ने बताया कि गैर कानूनी लीज देने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी के अलावा गैर कानूनी लीज़ों को कानून के मुताबिक मनसूख कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि जर्मन स्कूल की ज़मीन पर सरकारी सरपरस्ती में कब्जा हो रहा है। इंडस अस्पताल ने जगह पर अस्पताल और कॉलेज बनाने की तजवीज़ KMC को दे रखी है। इंडस अस्पताल अच्छी शोहरत रखने वाला इदारा है। 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाह जारी किया था, मगर कब्जा माफिया ने दीवारें तैयार करके तामीरात शुरू कर दी। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं कि अमरीकी डॉलर 2 रोज़ से महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 281 रुपये का हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर पे तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया। दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हुई। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर दूसरे रोज भी महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 3 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर गुज़िश्ता रोज से बैंकों ने इंटरबैंक में रेट बढ़ाने शुरू किए। बैंकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि अचानक कल से बैंकों को फिर मौका लगा और उन्होंने 4-5 रुपए इंटरबैंक में बढ़ा दिया और मजबूरन उसकी वजह से ओपन मार्केट में भी बढ़ा। और आज जो एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक में दे रहे थे वो नहीं दे पाए। तो हमने ये देखा पहले भी बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की है। इस साल बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो गए, 400 बिलियन से 700 बिलियन पे चले गए।
इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए से बढ़कर 281 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 5 रुपए इजाफे से 346 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21।